اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ میں کیا بیمار ہوں؟ نہیں، یہ ستارہ جو ہے یہ ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ والذین لا یعلمون الا یتذکر اولو الالباب، اور وہ لوگ جو ہم نہیں دکھتے بے شک صرف عقل والے ہیں، اور عقل والے ہی جو ہے وہ نعمت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو شعور نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی بھی جو ہے نشانی نہیں ہے۔ تو اس میں سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی عقل اور شعور کا مظاہرہ کیا اپنی عوام کے سامنے، لیکن ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف قسم کی جو ہے وہ دلائل دیے، لیکن انہوں نے دلائل کو قبول نہ کیا، اور وہ بے رہنمی کی طرف جب ان کی قوم چلی گئی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ بے رہنما رہے۔ تو جب کسی بندے کے اندر جو عقل و شعور نہ ہو تو وہ کسی اچھی بات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دلائل جو ہے ہمیں اپنے مختلف امراض کو درست کرنے میں، اور مختلف حکومت جب بھی بات کرتے تھے تو ہمیشہ جو ہے دلائل کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آج ہم جو ہے ہمارے شعرا آفاق حکیم افلاطون کی بات کریں گے۔ قدرتی اور فطرتی طریقہ علاج کا پرزور حامی، یہ سب سے پہلا جو ہے یہ اس نے قدرتی اور فطرتی علاج کو جو ہے وہ اپنایا۔ یہ 2000 سال پہلے جو ہے یہ افلاطون حکیم گزرے ہیں۔ تو ان کی اتنی زیادہ شیریں اور اتنی زیادہ مٹھاس اور اتنی زیادہ جو ہے یہ ان کی لذت، اور ان کے اندر جو ہے اتنی زیادہ اچھا بیان جو ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ ہندوستان کے اندر ایک مٹھائی کا نام جو ہے افلاطون رکھ دیا۔ تو وہ مٹھائی جو ہے یہ بڑی زبردست قسم کی مٹھائی ہے۔ اس میں بیسیکلی طور پر فرمنٹیشن جب کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، تو اس میں جو ہے فرمنٹیشن کا جو ہے سب سے پہلے جو ہے یعنی کہ خمیر کا طریقہ جو ہے افلاطون نے ایجاد کیا۔ تو یہ جتنی بھی لذیذ مٹھائیاں ہمیں جو ہے فرمنٹیشن سے حاصل ہوتی ہیں یہ افلاطون کی ایجاد ہے۔ ایک دن جو ہے ایک فلسفی بقراط جو ہے وہ رات کو سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سارس نکلا ہے جو کہ بچہ ہے، اس کے تیزی سے پر نکل آئے ہیں، اور اس نے جو ہے صبح اٹھ کے جو ہے خواب کی تعبیر اپنے شاگردوں سے پوچھی۔ تو سب سے پہلے افلاطون نے جو ہے یہ اس کی تعبیر بتائی کہ یہ میں ہوں، آپ نے میری نشانی بتائی ہے، میرے اندر جو ہے یہی جو ہے خوبیاں موجود ہے، یعنی کہ میں غیر معمولی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر بہت جلد ساری دنیا جو ہے میرے محاسن کے گن گائے گی۔ اس طریقہ سے افلاطون سب سے پہلے جو ہے اس نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پوری دنیا کے اندر وہ چھا گیا، اور اس کی جو ہے ایجادات آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث سے افتخار اور باعث سے رحمت ہے۔ اور اسی طریقہ سے ان کی پہلی ایجاد جو ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ فرمنٹیشن کا عمل سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، یعنی کہ خمیر بنانے کا عمل، اور اس سے ہزاروں مٹھائیاں جو ہے بن رہی ہیں آج جو ہے وہ، اور خمیر کا جو ہے بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ جیس جس کو ہم کہتے ہیں، جیس کے متعلق جو ہے بہت زیادہ بکس ہیں۔ تو جیس کی کلیکشن ہے میرے پاس، اور بہت زیادہ جو ہے یہ ہزاروں بکس جو ہے یہ جیس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ جیس نے کمال کر دیا ہے، اور جیس ہمارا جو ہے خمیر اور انزائم کا جو ہے وہ چرچا ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے افلاطون نے جو ہے ارسطوٹل یا ارسطو کے ساتھ جو ہے وہ عزت و شہرت حاصل کی۔ افلاطون کا حصول علم کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کو اس نے سفر کیا، اور مختلف بکس کو جمع کیا اور ان کو پڑھا، اور عوام کو جو ہے اس کی خدمت
के अमल को दिया और इन हिकमत से जो उनको जवाब दिया। इस तरीका से जो है वो अफलातून जो है ये एक बेहतरीन किस्म का जो है अल्लाह की औलाद मुआलजे का बड़ा शौकीन, और इसी तरीका से जो है तारीख हमें बताती है। इसने बहुत ज़्यादा किताबों का मुताला करने के बाद वो बीमारियों को दूर करने में जो है वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का वो हामी था। यानी कि बीमारी के शुरू होने से पहले हमें जो है वो बीमारी को से दूर रहने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले इसने ईजाद किया और कुदरती तरीका इलाज इसके बड़े अच्छे ढंग से जहाँ वजाहत और वकालत की। तो ये पहला जो तबीब था जिसने जो अजीज को दरियाफ्त किया, जिसने जो है खमीर को दरियाफ्त किया, जिसने फर्मेंटेशन का तरीका दरियाफ्त किया। तो इस तरीका से जो है ये इलाज मुआलजे को, इसलिए जहालत एक बीमारी है और इसका इलाज इल्म है। नाकस इल्म शक पैदा करता है और शकूक कभी हल नहीं हुआ करते। यानी कि इसने कहा कि जहाँ भी शकूक आ जाए वहम का कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले इसने दरियाफ्त किया। तो अफलातून के कुछ जो है वो अखबार है जो हम बयान करते हैं। इंसान के लिए बड़ी नाफिक चीज ये है कि अपने नफ्स से ज्यादा दूसरों के आराम का ख्याल रखे। यानी कि अपना तो ख्याल जो है, जब अल्लाह ताला दूसरों का गॉड लव दोज हु लव हिज मैनकाइंड, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ कर देगा, अगर बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा। तो इसी को अपने नफ्स को मार ले और दूसरों के लिए जो है वो आप दूसरों के आराम का, यानी कि मरीजों के इलाज मुआवजे का रात दिन आपका फर्ज है। जब एक मुआलिज बन जाते हैं तो मुआलिज का ये फर्ज है कि अगर रात हो या दिन हो तो वो किसी चीज की परवाह किए बगैर जो है मरीज का इलाज करे। 3 अशखास देखकर मुझे बेहद रंज होता है। वो मालदार जो गरीब हो जाए, वो आबरू वाला जो बेआबरू हो जाए, वो सखी जो वकील से अपनी हाजत बयान करे और पूरी ना हो। यानी कि वकील उसके सामने अपनी हाजत बयान करे और उसको पूरी ना करे, सखी हो। तो ये जो है 3 आदमियों से बचले रहना जो जरूरी है, यह हकीमाना कौल है। गजबनाक हाकम से बचे रहना जरूरी है। वो शख्स जो बदला लेने पर कादर हो उससे बचे रहना जरूरी है। वो दौलतमंद जो कीना रखता हो तो उससे बचे रहना जो है जरूरी है। तो हम जो है डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे। डायबिटीज के हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में जान रहे थे। कॉम्प्लिकेशन हमने जान ली है, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन मैं जो है वो जानबूझ के छोड़ गया, वो उसको मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो है मेरे दोस्तों के लिए जो है ये शेयर में इसको अर्ज कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त इसको समझ जाएंगे। मेरा अलते अज फजीलत कुस्त वसुस्ती बा कजी जहते दिल ले गमी बखुई दर अमीजाद हनूज रशुदा अंदर सराजू सरमस्ता दर पादर आबदो अजलम शोभा में विजदत। ये जो है असल में फारसी जुबान का शेर है। तो इसके अंदर वो बीमारी बयान की गई है कि जो कि डायबिटीज मेलेटस की वजह से होती है और इसमें जो इंतहाई शर्मिंदगी होती है, बंदे को असाब कमजोर हो जाते हैं, बंदा जो है किसी काबिल नहीं रहता। और ये इसमें जो है वो शर्मिंदगी भी होती है और अंदर वो मतलब कि जो है वो दूसरा बंदा जो है वो मुस्कुराता रहता है कि ये बंदा मतलब जो बंदा नहीं रहा, पता नहीं क्या बन गया है। तो इस तरीका से जो है शेर के अंदर मैं तशरीह नहीं ज्यादा करना चाहता, क्योंकि जो है इस पर पाबंदी है, ऐसे अल्फाज पर पाबंदी है। तो हम जो है इसको समझ जाएंगे, मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि मैं जो है क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो ये फारसी का जो शेर है इसके अंदर जो है ये सब कुछ जो है तकरीबन बयान किया गया है। तो इसी तरीका से फारसी के शेर को हम जो है ये बयान करते हुए हम जो है वो अपने असल टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो असल टॉपिक जो है वो है हमारा जो है ये जितनी भी अद्वियात हमारी देसी अद्वियात के बारे में हम बात करते हैं, तो वो कैसे काम करती है और हमारे शुगर को जो है वो कैसे कंट्रोल करती है, कौन कौन से अद्वियात जो है शुगर के लिए जो बेस्ट है। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है वो जानने के बाद आगे जो है बढ़ते हैं।
तो डायबिटीज के अंदर जो है बहुत सी देसी अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कल हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर उसकी लिस्ट जो है आपके सामने जो है पेश की थी। तो आज भी वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की लिस्ट जो है वो मेरे सामने है, तो मैं आपको दिखाने के लिए जो है ये कोशिश करता हूँ कि आप भी इसको जो है वो देख लें। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से पूरी दुनिया के अंदर जो है ये डायबिटीज जो है ये है, ऐसी मर्ज है ना सिर्फ अमेरिका में है बल्कि पाकिस्तान में भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है मकदार में हो गई है। तो इस तरीके से जब इतनी ज़्यादा मकदार में हो गई है तो हम उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको कंट्रोल करने के जो है मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीके जो है बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ अद्वियात की सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। तो मुख्तलिफ अद्वियात जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ अद्वियात से जो है हम इसका इलाज करते हैं। तो अद्वियात कैसे काम करती है थोड़ा सा इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी अद्वियात जो है देसी अद्वियात कैसे काम करती है, और इसी को जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है ये इसमें जो है वो यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी होने की वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जो होती है उनमें जो है ये क्यों जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, और ये हार्मोन कंट्रोल हम पीछे जो है वो जान चुके हैं। तो असल में मैंने ये बताया था आपको कि ये जो असल में हमारा लबलबा है या पंक्रियास है बेसिकली तौर पर, ये भी एक जो है वो मतलब जो है ये ग्लैंड है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड की ही एक किस्म है। तो ओवरीज भी इंडोक्राइन ग्लैंड की किस्म है। तो ओवरीज भी जब ओवरीज भी इंडोक्राइन ग्लैंड की जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब ये कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो जो उसके अंदर पानी पड़ जाना या इस तरीके से जो है वो उसके अंदर सॉलियस ही बन जाना, पानी वाली थैलियाँ जिनको पंजाबी जुबान में कहते हैं। तो इस तरीके से ये ओवरीज जो होती है बेसिकली तौर पर, तो इसी तरीके से ये वाला जो है मतलब सिस्टम जो है ये खराब हो जाता है बाद लोगों के अंदर जो है ये उसमें जो है बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें डायबिटीज की होती है, डायबिटीज के अद्वियात को इस्तेमाल की जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर। तो भाई जैसे कि मतलब इसमें जब भी थ्रेशोल्ड होता है, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब पूरा निज़ाम हमारा खराब हो जाना, मतलब टूटी ग्लैंड से लेके ग्रोथ हार्मोन से लेके जो है वो इंसुलिन ग्लूकागॉन और उसके बाद जो है एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और दीगर हार्मोन सारे के सारे जो है डिस्टर्ब हो गए। जैसे कि हमने कल भी बात की थी जो है जिसमें जो है नेफ्रीन और इस तरीके से दीगर चीजें जो है वो जब इस तरीके से जो है बनती है तो इसमें जो है ये चेंजेस आ जाती है, पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर जो है ये बेसिकली तौर पर जब ये भी ग्लैंड है इसके अंदर चेंजेस आ जाती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मकदार जो है वो कम ज्यादा हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो है जब ये हो जाता है तो उसमें चेंजेस जो है वो पंक्रियास के अंदर भी आती है, तो जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर और मोटापा जो है ऐसी बच्चों को और सॉरी औरतों को हो जाता है जिनको ओवर सिस्टम जो है वो ओवरी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला हो। तो इसलिए जो है ये इसका जवाब मैं जो है वो बहुत से ऐसे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरी बहनें खास तौर पे जो है जब हॉस्पिटल में वो मेरे पास आती है तो स्पेशली तौर पे ये सवाल जो है ये करती है। इस तरह मेरे बहुत से भाई भी ये सवाल करते हैं कि आजकल ये क्यों ऐसा है। तो इसलिए उनका जवाब जो है मैंने तकरीबन शॉर्टकट में देने की कोशिश की है। तो इसको हम जो है हॉट इलनेस कहते हैं, यानी कि इसका मिजाज गर्म होता है। तो इसके करेक्टर को जो है वेजो डायलेशन और जो है वो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। असल में बाद लोग इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि डायबिटीज जो है बेसिकली तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो है असल में ये डायबिटीज जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम की जो है वो डिसेबिलिटी आप कह सकते हैं, ये ज्यादा मेरा ख्याल बेहतर होगा। तो इसमें जो है ये हम मुख्तलिफ चीजें जो है इस्तेमाल करते हैं। कैक्टस हम इस्तेमाल करते हैं, कैक्टस जो है इसका जो है उर्दू नाम जो है ये हमारे होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ भी जो है इस्तेमाल होता है। तो इसका उर्दू नाम जो है ये है जी कैक्टस का थोड़, इसको थोड़ कहते हैं।
तो खोड़ हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है बेसिकली एलोवेरा, आप सब जानते हैं, एलोवेरा जूस हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा इसके प्लांट लगे हुए हैं। तो एलोवेरा जो है ये अलोज भी इसको कहते हैं, एलवा भी कहते हैं। तो इसको जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरे घर में जो है ना ये प्लांट लगे हुए हैं, मैंने गमलों में भी लगाए हुए हैं। तो इसके बाद ये बिटर ग्राउंड तो आप सब जानते हैं, करेला। तो करेला जो है ये कैसे काम करता है, ये आगे चल के जो है बिटर चीजें कैसे काम करती है आगे चल के हम बताएंगे। तो इस तरीके से जितनी भी जो है ये चीजें जो है ये मुख्तलिफ जो है वो जड़े जो है जो है वो इनके फ्यूजन, मतलब फ्यूजन मैंने बताया था खसांदे को कहते हैं। और ये जो है इस तरीके से इनके एक्सट्रैक्ट कर तैयार करके जो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। इनको एक वीक इस्तेमाल करवाया जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया जो है बेहतर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो टर्मन फ्लावर है, जिसको जो है हम सुरंजा कहते हैं, और इसको जो है वो तरही भी कहते हैं। तो और इसके बाद जो है अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं। तो इसके बाद टोरेडा है। तो इसको हम अपनी ज़ुबान में जो है ये बबुकरी जो है बुश कहते हैं। तो ये भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ऊपर तो येलो फ्लावर बड़े प्यारे से होते हैं। तो ये भी जो है ये जो है येलो फ्लावर वाले आजकल फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये भी मेरे घर में, घर के बाहर जो है ये बगीचे में लगे हुए हैं। सैग और सलेवा जिसको कहते हैं, तो ये भी हमारे जो है वो आम है यहाँ पे जो है फैसलाबाद के अंदर जाइए है। तो इस तरीके से जो है सैग को हम जो है वो अपनी ज़बान में जो है ये बहमत सुरख भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये पूजा आप सब जानते हैं, पूजा खोड़, और इसके बाद जो है ये जो है एलोवेरा का जूस, और इसके बाद जो है ये कुछ जो है ये सैग टी को भी हम इस्तेमाल, ब्राह्मण की जो है चाय को हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो इसके बाद जो है कुछ जो है ये हमारे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इसमें सजीज़ जुजुबा है। सजीज़ जुजुबा जो जामुन के जो है ये मतलब की गुठलियाँ, और उसके बाद जो है वो जामुन के पत्ते जो है ये मदर टंचर के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो आर्टेमिशिया जो है ये असल में जो है ये पूजा, असल में ये इसमें जो है वो मानो टर्बाइन जो है वो टर्पीन होता है। मानोट्रोपिन का जो फार्मूला जो है ये है कि C3H10 और वो जो है इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो ये जो है हम बहुत ज़्यादा जो है ये आर्टिमिशिया, जिसको अफसलतीन आप लोग कहते हैं, मेरे भाई जो है अफसलतीन कहते हैं। इसी तरीके से गोलमार बूटी तो आप सब जानते हैं। तो गोलमार बूटी जो है इसको सिंगुलर जो है वो मटीरियल भी कहते हैं। और इसके साथ इसमें जो है मैं दोनों को पीस के ना इसके अंदर जो है वो बिटर ग्राउंड वाटर जो है ये डाल देता हूँ। मतलब कि जो करेले का पानी जिसको आप कह लें, तो उसको लेके मैंने 250 ग्राम ये लेके तो उसमें जो है 1 किलो करेला लेके उसका पानी निकाल के इसके अंदर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये कैसे काम करता है ये हम जो है वो आगे चल के थोड़ी सी इसके लग जाए जानेंगे। तो इसके बाद जो है वो डायबिटीज जो है वो 1 के बारे में जो है हमने कल भी जाना था कि इसके ऊपर जो है वो कौन सी जो है वो हर्ब्स या कंपाउंड रेमेडी जो है वो कौन सी काम करती हैं। तो इसमें जो है वो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होता है जी। जूबेक्स जो है कच्ची लेबॉर्ट्री की मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। जुलाबी, और इसके बाद जो है ये अर्के शफा, अक्सीर जिगर गोलियाँ और मुसफ़ी गोलियाँ, और सफूफे जो है वो चाइना रूट को जो है वो चोप चीनी भी कहते हैं। तो चोप चीनी के ऊपर मेरा जो है PhD का काम भी है। जिगर के ऊपर इसके जो अफाल का काम है, तो इसके ऊपर जो है वो सफूफे चोप चीनी जो है ये इसको कंपाउंड में बनाता हूँ और इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ट्रिपल शाहतरा इस्तेमाल करवाता हूँ। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इस्तेमाल होगी। कैसे काम करती हैं इसके बारे में जो है आगे चल के थोड़ा सा हम जानेंगे। तो इस तरीके से जो है वो पुराने ज़माने में जो है खाने के बाद थोड़ी सी इंसुलिन जब हम लगा लेते हैं तो उसके लिए कंट्रोलिंग सिस्टम जो है ये बहाल हो जाता है। तो इसके बाद जो है ग्लूकोज के मुतल्लिक जो है कैसे जो है ये इंसुलिन कैसे रिस्पॉन्स हमें देती है, तो इसके मुतल्लिक ये थोड़ा सा जो है ये
हम जो है ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर जो है वो डिस्फंक्शन टाइप 2 जो है इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये कुछ वक्त गुजरता है तो उसमें जो है ये ग्लूकोज जो हम जो है टाइप 2 के अंदर कंट्रोल के अंदर ये जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम जो है ये इंसुलिन जो है इसका रिस्पॉन्स आते ही जानवरों के अंदर ये प्रैक्टिकल जो है वो किया हुआ है। तो प्लाज्मा के अंदर इंसुलिन जो है वो उसका जो है ये है। तो इस तरीके से जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एंटी डायबिटीज या हाइपर जो है वो ग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक हर्बल कंपाउंड, तो ये कुछ कंपाउंड जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। तो ये जो है इंटेस्टाइनल जो है वो वर्षित जो है ग्लूकोज को यानी कि ग्लूकोसाइड्स को जो है इनहिबिट करते हैं और स्टिमुलेट टू इंसुलिन रिलीज, तो उसमें जो है इंसुलिन को जो है वो कम करते हैं। खास तौर पे जो है वो चोप चीनी जो मैंने अभी आपको बताई, चोप चीनी जिसको चाइना रूट कहते हैं और ब्लूबैक्स, ये दोनों दवाइयाँ इसी तरीके से काम करती हैं। तो चोप चीनी जो है इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा काम है। तो इसमें जो है चोप चीनी जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये असल में जो है वो इसको ब्लॉक कर देती है, जो भी ग्लूकोज इसके अंदर जो है वो खत्म हो रहा है। तो ब्लॉकर्स ऑफ द जो है ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो बैगोनाइड्स जो है ये कंट्रोल करते हैं। बैगोनाइड्स क्या है ये हम आगे चल के थोड़ा सा बताते हैं जी। बैगोनाइड्स असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारी कुछ हर्ब्स का जो है वो उनमें जो है वो जैसे कि ग्लूकोज है फ्रक्टोज माल्टोज में तब्दील हो जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है बेसिकली तो और फ्रक्टोज और माल्टोज उसमें ये डाइसेक्राइड है, उसमें मोनोसेक्राइड इसमें जो होते हैं। तो इस तरीके से ये दो समझ तकसीम हो जाता है। तो आगे ये इसमें जो है वो आगे चल के जाइए अगर फ्री रेडिकल के साथ मिलके जाओ नए कंपाउंड बना लेता है। तो इसके बाद जो है ये सीरे जिगर जो है ये काम करती है। तो कैसे काम करती है ये एक्टिवेट कर देती है इंसुलिन के जो है मतलब जो अक्सीजन जिगर के अंदर जाके जब स्टोर होती है ना इंसुलिन, तो उसके ऊपर जाके ये अक्सीजन जिगर जो काम करती है ये डाइज्यूरेटिक के तौर पे भी काम करती है और दोनों तरफ जो है काम करती है। मतलब एक तो जिगर की सलाह करती है और उसमें जो है वो इंसुलिन जो है वो इसमें जो है वो कम से कम करने की जो है कोशिश करती है, यानी कि डिपॉजिट जो है वो इंसुलिन कम से कम हो बल्कि जो है पूरे जिस्म के अंदर जो है फैलती रहे। तो इसमें जो है वो इंसुलिन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ये ग्लूकोगोन लाइक जो है पेप्टाइड इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे एक दोस्त है डॉक्टर इमरान साहब, इमरान मुख्तार उनका पूरा नाम है, मैंने उनके साथ भी काम किया है। तो उनके साथ जो है ये मैंने जो है ये कैसे इंसुलिन जो है वो अब्जॉर्व होती है, कितनी देर में होती है और कहाँ जाके अब्जॉर्व होती है, ये इस पे मैंने काम किया। वो जो है वो अमेरिका भी रह के आए हैं। उन्होंने जो है ये जितने भी जो है वो जब वो बताते थे कि जब कोई भी अमाइनो एसिड रिएक्ट होता है ना इस तरह का, ये सारे अमाइनो एसिड हैं सारे, तो वो बड़े खुश होते हैं जो है ये अमाइनो एसिड को देख के और फिर दोबारा वो लगे रहते हैं, अंग्रेज जो है इस चीज पे लगे रहते हैं। तो चाइना रूट कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा सा जाइए। स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल। चाइना रूट जो है ये बीटा सेल के अंदर जाके उनके अंदर अगर दो चार भी बीटा सेल है तो उनके अंदर जो है वो रिलीज कराने में जो है वो बाइंडिंग थ्रू द एसयू रिसेप्टर जो है इसके अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उसके ऊपर असर करती है और पोटाशियम एटीपी जो है उसको चैनल को जो है वो लॉन्ग करके जो है वो मेटाबॉलिक जो है वो टी हाफ को जो है वो ज्यादा कर देती है। तो चाइना रूट जो है वो बहुत अच्छा इस तरीके से काम करती है। तो चाइना रूट का जो वे ऑफ एक्शन है जिसमें जो है ग्लूकोज और उसके साथ जो है ये चाइना रूट जो है बीटा सेल को ऊपर असर करके जो है कैल्शियम रिलीज करवा रही है और इंसुलिन रिलीज कराने में जो है वो एटीपी और एडीपी में अहम किरदार जो है वो अदा कर रही है। तो चाइना रूट का जो है बहुत ज्यादा जो है वो काम है। इसी तरीके से जो है ये जुबेक्स टेबलेट जो है जैसे चाइना रूट काम करती है बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बाइंड विद बीटा सेल एंड ये रिसेप्टर के साथ जो है वो रैपिड अब्जॉर्प्शन करवाती है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवाती है और इस तरीके से जो है वो इंसुलिन की क्लीयरेंस करवा देती है। तो अभी मैं बात कर रहा था जो है वो गवर्नर नाइट्स की जो है वो, तो ये जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में। तो इसका फार्मूला जो है आपके सामने है। तो ये C2H7 जो है N5 इसका फार्मूला है बेसिकल तौर पर।
یہ کچھ ہمارے جو ہے یہ گلوکوز کے ساتھ یوریا جو ہے یورک ایسڈ ملا کے جو ہے اس طریقے سے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ملا کے جو ہے یہ کمبینیشن تیار کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ لیور کے اندر جو ہے وہ گلوکونیوجینسس کو جو انہیبٹ کرتی ہے اور انسولین سینسٹیوٹی کو جو ہے وہ ٹیشو کے اندر جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. تو یہ پہلی میڈیسن ہے, یعنی کہ یہ آرگینک پہلا سالٹ ہے جو کہ جس کا جنرل فارمولا بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس کو جو ہے بیسیکلی طور پر مٹ فارمن بھی کہتے ہیں, گلوکوفیج بھی کہتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اور بہت زیادہ اس کے نام ہے. تو اس طریقے سے یہ جا کے جو ہے اورلی طور پہ جو ہے اثر کرتی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سیرے جگر جو ہے ہماری ٹیبلٹ جو ہے اس میں جو ہے یہ سب لوگ میرے دوست اسپیشلی جانتے ہوتے ہیں سیرے جگر میں ہم سموہ بھی بناتے ہیں. سیرے جگر میں اس میں جو کار کلمی چورا اور دیگر چیزیں ڈال کے جو ہے اسی طریقے سے یہ بھی سیرے جگر ٹیبلٹ بنی بنائی ہے. تو یہ بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کہ ہمارا ذاتی فوڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اصل میں جو ہے یہ جب بھی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے سمے تو سب دوست جانتے ہیں تو اریٹیٹ کرتی ہے, تو بار بار پیشاب آتا ہے, یورینیشن بار بار ہوتی ہے. تو یہ جا کے جو ہے ہمارے گردوں کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو بیسیکلی طور پر جب انسولین کا ایکشن جو ہے بائنڈنگ کی ایکشن جو ہے وہ ریسیپٹر سیرے جگر وہاں جہاں پہ جو ہے وہ پروکسیمل سیل کے اندر جو ہے پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ریسیپٹرز کو جو ہے وہ بہتر کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ میٹابلائز ود لانگ ہاف لائف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ ہضم ہونا شروع کرتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے یہ بہت سی جو ہے وہ کنٹراڈیکیشن جو ہے ڈرگ کی جو نقصان اس کے پہنچانے کی لے کے جو ہے یہ اگر ہم زیادہ استعمال کر لیں کسی بھی دوائی کو جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے وہ گردوں میں سب سے پہلے جگر کے فنکشن کو نقصان پہنچے گا اگر ہم کوئی بھی ایسی جو ہے وہ چیز کو استعمال کر لیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اندر جو ہے یہ گردوں کے بعد جو ہے گردوں کو نقصان پر جو ہے وہ امپیئرمنٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کارڈو واسکولر جو ہے ڈیزیز کیوں پیدا ہوتی ہیں ویزو ڈائلیشن ہونے کی وجہ سے. جب جو ہے ویزو ڈائلیشن ہو جائے گی مجھے کسی بھی جگہ پہ تو اس میں جو ہے وہ کارڈو واسکولر ڈیزیزز اور بلڈ پریشر اور اس طریقے سے دیگر جو ہے بیٹا بلاکر جو ہے یہ پیدا ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے جب گلوکوز زیادہ ہو جائے گا بلڈ کے اندر اسی طرح سے جو ہے تو انسولین بھی زیادہ ہو جائے گی بیٹا جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے بارے میں ہم نے جانا تو اس میں جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے مختلف جو ہے وہ جب ہم کنٹراسیپٹک یا اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. تو بٹر ریمیڈی جو ہے جو ابھی ہم نے جو ہے وہ بٹر گراؤنڈ کے بارے میں بات کی, کریلا جس کو کہتے ہیں جی ہم اپنے زمانے میں روز جو ہے کریلے میں تو بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں, آلو کریلے جو ہے تو وہ جو ہے وہ ایکشن کیسے کرتا ہے بیسیکلی طور پر. تو یہ تھوڑا سا ایز شوگر ہے سویٹ ٹیسٹ ہماری ٹریڈیشنل میڈیسن کے اندر جو بیان کیا گیا اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو ایز شوگر ہے سویٹ ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کہ چینی جو ہے میٹھی ہوتی ہے, ہر چیز جس میں گلوکوز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے. when it is dissolved in blood جب یہ خون میں شامل ہوتا ہے it becomes sweet taste. تو خون کو جو میٹھا کر دیتا ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے اور اس کو بڑا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس لیے سرخ الفاظ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یوز دی بٹر ہربز تو اس لیے ہم جو ہے یہ بٹر ہربز کو استعمال کرتے ہیں جس میں جو ہے یہ ابھی ہم نے بات کی کچھ بٹر ہربز کی. تو کریلے کی میں نے اسپیشل بات کی, آرٹیفیشیا سب جانتے ہیں, افسنتین کی بات کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ نیوٹرلائز سویٹ ٹیسٹ تو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اس کو سویٹ ٹیسٹ کو جو ہے نا. تو بٹر ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے لیس سو اٹ کنٹین دی نارمل شوگر لیول. تو جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر جو ہے وہ نارمل شوگر لیول ہو جاتا ہے. پرانے زمانے کی بات ابھی تک اس کو ثابت میں یہ اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ سویٹ پلس جو ہے بیٹر دونوں مل کے جو ہے ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے ابھی جو ہے وہ یہ ایسڈ بیس مل کے کیا بنتا ہے نیوٹرل ہو جاتا ہے.
जैसे दो मिसालें यहाँ पे दी हुई है, एक जो है Na जो है वो क्या है एसिड है, Cl क्या है बेस है, तो NaCl नमक है। नमक जो है उसका टेस्ट चले जैसे भी है, ये एक मिसाल है। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्या है बेसिकली तौर पर एसिड है, OH क्या है बेस है, दोनों मिलके जो है H2O बनाया, इसने पानी बना लिया, पानी का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है जी। ये टेस्टलेस है, होता थोड़ा सा मीठा है लेकिन ये टेस्टलेस इसको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम इसीलिए इसकी जो है वो सब कुछ वन मानते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो है हमारे बिटर जितने भी जो रेमेडीज है, हर्बल रेमेडीज, वो जो है वो स्वीट को अंदर जाके कैसे खत्म करती हैं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ द सिजीजियम जबुलम जो है, जिसको हम अपनी जबान में जो है ये कहते हैं जी, ये जामुन, तो जामुन कहते हैं इसको जो अपनी जुबान में। तो जामुन के बीज और जामुन की गुठलियां एक ही बात है, और जामुन के पत्ते इस तरीके से जाएंगे कैसे काम करते हैं, ये मदर टेंशन के तौर पे होम्योपैथिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका जो वे ऑफ एक्शन क्या है, तो बड़ा ये भी जबरदस्त किस्म का एक्शन है जी। इट गोज टू इंटेस्टाइन, ये जो है ये इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जाके ग्लूकोज को बाइंड होने से रोक देता है। यानी कि इसका जो है मदर टेंशन, इसको मदर टेंशन तो आप सब दोस्तों को पता होगा कैसे बनाते हैं। जैसे हम पुराने जमाने में बनाया करते थे, मतलब उसमें जो है थोड़ा सा जो है वो अल्कोहल वेहिकल डाल के, तो उसमें जो है ये उसको हम जाएंगे, उसको मदर टेंशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये टेंशन बेंजल को टेंशन, जैसे हम पहले टेंशन बनाया करते थे, इसी तरह से जो है सिजीनियम का भी आप जो है टेंशन बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो अल्कोहल डाल के तो इस तरीके से जो है उसको उसमें हल करते रहते हैं, तो इस तरीके से ये टेंशन बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये इंटेस्टाइन को जो है वो ग्लूकोज को इनहिबिट विद द ब्लड, ब्लड से जो है वो सब ग्लूकोज जो है वो अंतों से जरूर होकर जो आगे जिगर में जाता है ना, तो वहां पे इसको इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको जो है वो उसको जो है वो इंटेस्टाइन से जो है वो ग्लूकोज जो है वो अब्जॉर्ब होने से ही जो है वो इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिटरी एक्शन जो है इसका जो है वो पहला सबसे इनहिबिटरी एक्शन जो है वो मौजूद है। दूसरा जो है ये जो है वो ये स्ट्रिजेंट जो है वो है, मतलब कि स्ट्रिजेंट हम जो कहते हैं खुश्की पैदा करने वाला जो है, मतलब कि जब भी आप इसके पत्ते वगैरह देते हैं तो उसमें जो है दस्त वगैरह ये रुक जाते हैं बेसिकली तौर पर। तो इसमें जो है अदर हैंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रिजेंट होने की वजह से इट स्टॉप द एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो है असल में जो है ये वहाँ पे जो है वो सलाबत पैदा करता है, रिजिडिटी जिसको कहते हैं आप जो है वो उर्दू जुबान में सलाबत इसको कहते हैं। तो ये सलाबत ये एस्ट्रोजन पैदा करके वो सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, इसके पत्तों के अंदर जामुन के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो जो हजम करने वाले एंजाइम है, मतलब माइलेज में मुंह से उसको हजम कर दिया, उसके बाद आगे अंतों में जो एंजाइम है उसको ये जो है वो इनहिबिट करके जो है ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो डाइजेस्ट होने से रोकता है। जितना कार्बोहाइड्रेट पहले मौजूद है वही जो है खून में रहता है, और उसके बाद जो है वो जब कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गया मेरे खून के अंदर, तो साफ ज़रा हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट जो है पैदा हुआ। तो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट हुआ तो उसमें जो है यूरिनेशन भी कम हो गया, तो और बाकी चीज़ें भी। इट हैज़ फ्री रेडिकल, इसके अंदर फ्री रेडिकल होते हैं जो कि शुगर के साथ मिलकर जो है वो नए कंपाउंड बनाते हैं जो वो ग्लूकोज नहीं होते। मतलब फ्री रेडिकल जब इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, इसके जो जो केमिकल कांस्टेंट इसके अंदर नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं, ये तीनों तरीके से जो आप अपना एक्शन करते हैं तो ये नए कंपाउंड बना लेता है। तो जिसकी वजह से जो है ये इसके अंदर जो है ये होता है। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा जो है हम जो है ये हमें जब लॉन्ग टर्म जो है क्योर करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो ये जो है वो हमें जो है मुख्य पंप्स की जरूरत होती है, और इसी तरह से जो है वो दूसरी चीज़ों की जो है वो जरूरत होती है। तो इम्प्लांट्स की जरूरत होती है और जीन थेरेपी की जरूरत होती है। तो बॉडी मास जो है हेमोस्टेटस और न्यू अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमें हमें जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो ओबेसिटी से जो है यानी कि मोटापे से जो है वो बचते रहिए, हमारा जो है वो अगला मोटो जो है। तो लिटिल अबाउट द सेंट्रल जो है वो
प्लेयर्स इसमें जो है कौन कौन से जो है वो और भी किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो बेसिकली तौर पर जब भी बंदा जो है वो परेशान होता है, गुस्से में होता है, टेंशन में होता है, तो हमारे जो है वो ये एंजाइम जो है मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर ये वाले जो है ये जाके जो है हमारे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ये गेन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये चीज़ें जो है वो तब्दील हो जाती हैं। तो मुख्तसर बात ये है कि डायबिटीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पैथोजेनेसिस शामिल है, जिसके अंदर जो है वो खास तौर पे टाइप 1 जो है इसमें जो है वो पैंक्रियाटिक ऑटोइम्यूनिटी जो है ये डिस्टर्ब होती है, जिसके अंदर जो है उसके जो है बीटा सेल भी डिस्टर्ब होते हैं, और उसके बाद जो है ये जेनेटिक तब्दीली आ जाती है इसके अंदर। तो टाइप 2 के अंदर जो है ये क्रॉनिक ओवरकम बीटा सेल के अंदर जो है ये ओवरवर्क हो जाता है बीटा सेल का, जिसके अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड एज की वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हमें जो है वो कॉलोनी डिजीजेज हो जाती हैं, ओवरवेट हो जाता है, और इसके बाद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है चलने फिरने में दुश्वारी होती है। और एक स्पेशल मर्ज मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले शेर की सूरत में, तो वो भी इसमें हो जाता है, टाइप 2 में भी होता है, टाइप 1 दोनों में होता है। तो ये मर्दों में बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अक्सर लोग जो है इसको हमारे पास आके जो है हकीमों के पास तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, खास तौर पर जो है शुगर के मरीज जितने भी आते हैं डायबिटीज़ के, तो वो इनको जो है ये शेयर में जो मैंने बात की है, तो वो जो है उनके लाइफस्टाइल को अगर हम कंट्रोल कर लें तो इससे जो है वो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से जो है बच सकते हैं, जिसमें जो है ये हम जो है कंट्रोल जो है हमें सबसे पहले हमें जो है वो अपनी खुराक को कंट्रोल करना चाहिए। तो जब भी मतलब जो है ये प्रॉब्लम होता है कि हम जो है कंट्रोल के बाहर जो है इधर से कुछ खा लिया, इधर से कुछ खा लिया, इधर से सुबह जो है वो नाश्ता करके निकले, तो उधर से जो है कुछ और चीज़ें खा के जो है हम आगे जो है बढ़ते गए, और इस तरीके से जो है ये तो उधर जाके जो है मतलब कि जो है वो 4 समोसे खा लिए, तो वो नाश्ता 4 परोठे खा के घर से निकले, और उसमें जो है 4 परोठों में भी आप देख रहे ग्लूकोज कितनी होती है। मैंने एक जो है सेमिनार मैंने आपको बताया था कि मैं सेमिनार जो है वो अटेंड करता रहता हूँ। हमारी कंपनियां जितनी भी जो है ये अंग्रेजी और अद्वियात बनाने वाली, वो अक्सर जो है ये सेमिनार जो है स्टीना होटल में या मुख्य होटलों में करवाते रहते हैं। तो कभी कभी मुझे भी जो है वो मजाक के तौर पे समझ लें या कि मुझे भी दावत दे देते हैं। तो उसमें मतलब कि बाद बार जो हमारे वहाँ पे झगड़ा भी हो जाता है कि वो हकीमों को जो है जब वो मेरे भाई जो है ये क्वैक कहते हैं या कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, तो मुझे जो है तैश आ जाता है। तो फिर मतलब थोड़ा सा मतलब कि बाद ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को कंट्रोल रखें और उनको जो है ये उनकी जो है ये चीज़ें जो है वो हम सीखें और उनसे जो है वो फ़ायदा भी हासिल करें। तो इस तरीक़े से ये जो है ये एक जो है हमें जो है फूड इनटेक में जो है आखिर में इसकी और भी समरी मैंने एक बनाई हुई है कि क्या-क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन जब पैदा हो जाए तो हमें जो है ये क्या करना चाहिए। तो रेटिनोपैथी मतलब कि इसमें जब आँखों की कमज़ोरी हो जाए हमें जो है वो, तो उसमें जो है हमें फौरी तौर पे जो है कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लेनी चाहिए, ऐनक लगवा लेनी चाहिए। लीडर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फौरी तौर पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो हमें जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बड़ा सीरियस जो है वो होना चाहिए। इसी तरह से जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है ये हो जाए तो हमें जो है फौरी तौर पे तो मैं बात कर रहा था सरीना होटल की, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मैं उनका भाई का नाम नहीं लूंगा, तो वो कह रहे थे कि अगर आप 4 रोटियां खाते हैं तो उसकी जगह पे एक आप जो है ना वही हमारी फर्मेंटेशन वाली बात, पहली बात जो वो गुलाब जामुन जबरदस्त, असल गुलाब जामुन भी जो है फर्मेंटेशन से बनता है, खमीर से बनता है, और जितनी भी ये मिठाइयाँ है ना सारी खमीर से बनती है, बड़ी मजेदार बात है। तो इस तरीके से जो है ये कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट जो है इसमें जो है वो कार्डियोमायोपैथी है। तो ये मायोपैथी कहते हैं जो पट्टे कमजोर हो जाना। मैं कहता हूँ कि बचपन से लेके जो है मौत तक जो है कार्डियो के पट्टे कमजोर नहीं होते, सवाए शुगर जो है उसको कंट्रोल जो है वो
कर देती है। तो शुगर जो है वो मायोपैथी जो है पैदा करती है, लेकिन जो है बाकी चीजें जो है वो पट्ठों को कमजोरी, सबसे मजबूत तीन पट्टे जो है वो हमारे दिल के हैं। और इसी तरह से मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है ये पैदा होने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन की कमी से भी कुछ बीमारियां हो सकती है जी, जिसमें जो है वो ग्लूकोगॉन मतलब हाइपोग्लाइसीमिया। मैंने अभी बात की आपको कि मेरी जो है भाई एक जो है मुख्तार साहब हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा वर्जिश करने के बाद जो है वो इंतकाल कर गए। उसकी वजह यही थी कि वो उन्होंने जो है ये वर्जिश ज्यादा कर ली, तो उसकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो जब जो है वो ग्लूकोज हम कम कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमें फेस होते हैं। बीटा सेल जो है ये किस तरीके से काम करता है, अल्फा सेल किस तरीके से काम करता है, तो हम जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसमें जो है कौन कौन से हार्मोन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जो है इसके अंदर जो है लिपिड स्टीराइड और जो है वो इंस्टाडायोल इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये जो मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरी की बात की, इसमें जो है वो तमाम स्टीराइड भी इसमें जो है वो शामिल होते हैं। और इसके बाद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो है वो जिसमें जो है वो थायरोनिन जो है और न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये सारे जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके बाद मुख्तलिफ गैसेज जिसमें जो है वो एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों शामिल होते हैं। तो ये जब जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये आने के चांसेस होते हैं। आखिरी जो है ये कुछ बातें हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, कि हमें जो है डायबिटीज के साथ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा खाओ भाई जी, ज्यादा एक्सरसाइज करो, घट सो, हाँ जी, तो उसको बाद थोड़ा रोया करो, अल्लाह ताला शुक्र अदा करे करो। तो शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कुरान पाक पढ़े, किताबें पढ़े, अपने आप को जो है वो अपग्रेड नॉलेज में रखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, आपस में जो है मिलजुल के रहें। तो इसके बाद जो है वो अपनी फिक्र और को जो है वो भूल जाए, खुश रहें, खुशियां बांटें, बी हैप्पी, हेल्प नीडी, दूसरों की मदद करें। जैसे कि अभी जो है वो अफलातून की जितनी भी बातें थी इसके अंदर जो है वो मैंने सारी शामिल कर दी हैं। तो अफलातून की बातें जो है वो वाकई सही हैं। तो आखिर में जो है वो अवॉइड सिन एंड इवल, कोशिश करें कि अपने आप को जो है ये महफूज रखें किससे, हाँ जी, किससे जी, इवल बुरी चीज़ों से और शैतान की जितने भी चीज़ें वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है जी। आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक जो है डायबिटीज मेलाइटस को मैंने जो है वाइंड अप करने की कोशिश की है। तो कल जो है वो हम एक वर्कशॉप, कल से इंशाल्लाह एक वर्कशॉप जो है मेरे DHO में हुई थी, उसकी जो है मेरे पास प्रेजेंटेशन है, तो वो मैं आपके सामने जो है पेश करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो मज़ीद जारी रखेंगे। तो कल वो प्रेजेंटेशन जो है ये हम इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे जी। उसमें उसका जो है ये असेसमेंट है मेरे हम जो है वो किसी भी ऐसे मरीज की जो कि साइको हो उसको। तो इसके बाद सिलेबस हमारा जो है वो जारी है। तो आज सिलेबस का ये एंड हो गया, इसमें जो है पहला सेशन एंड हो गया। बुनियाद को हमने शुरू किया था, उसका बेसिक जो है बुनियाद यानी फीवर्स का जो है हम बेसिक जो है वो अपने दोस्तों को बता चुके हैं। तो उसके बाद हम एक एक जो है वो बुनियाद को शुरू करेंगे, लेकिन अपना टेस्ट चेंज करने के लिए जो है हम साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी असल में जो है ये एक हर तबीब का जो है एक वालिद का जो है बड़ा बेसिक सब्जेक्ट है। तो हम मरीज की जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल जानेंगे। मेरे दोस्तों का, भाइयों का, और ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मैं मशहूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का, जो मुझे मौका देते हैं और मुझे फुल टाइम देते हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, और बाकी दोस्तों और भाइयों का